بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی مصنف سید سلیم عباس عرف ابو شجاع ابو وقار، قسط نمبر 24۔ اس کے ملازم عقیل میاں نے بھی اس سکھ کو اپنے لیے انجان بتایا اور کہتا تھا کہ جب وہ سکھ کا پیغام لے کر بشیر کے پاس گیا تو اس نے فوراً سکھ کو اندر ساتھ لانے کا کہہ دیا۔ عقیل قریب 2 سال سے بشیر کے باورچی کا کام کر رہا تھا۔ اس ورادت کی کڑیاں ملاتے مجھے 2 دن گزر گئے کہ اچانک مجھے خیال آیا ورادت کا ہم صرف عقیل میاں کے بیان کی روشنی میں ہی سوچ رہے ہیں، اگر بالفرض محال عقیل میاں کا بیان بھی غلط ہو تو، اور اچانک تمام کڑیاں میرے ذہن میں خود بخود ملنا شروع ہو گئی۔ بشیر اپنی تمام رقم اپنے پاس ہی رکھتا تھا جس کا عقیل میاں کو معلوم ہونا لازم تھا۔ عقیل قریب 2 سال سے بشیر کے ملازمت میں آیا تھا اور ان 2 سالوں میں اس سکھ عقیل نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ عقیل میرٹھ کا رہنے والا تھا، یہ اس کا بیان تھا جس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ ان سب باتوں کی روشنی میں میری سوچ صرف عقیل کو ہی قاتل ٹھہراتی تھی۔ اس کا واردات کے بعد فوراً روپے لے کر بھاگ نہ جانے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ بشیر کے جانثار ساتھی اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکال لیتے۔ میں نے عارف اور نذیر سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بشیر ظاہری طور پر 3000 روپے ہی ملے تھے، جبکہ بقول بشیر کے اس کے پاس 10 لاکھ روپیہ تھا جسے اس نے گھر میں ہی رکھا ہوا تھا۔ جو میں عقیل کے متعلق سوچتا میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ بالآخر میں نے اپنے ساتھیوں سے ایک مشورہ کر کے اسے عملی جامہ پہنانے کا پروگرام بنا لیا اور اگلے شام ہم مسلح ہو کر بشیر کے گیراج کی طرف روانہ ہو گئے۔ بشیر کے گیراج سے قدر پہلے ہم نے ٹیکسی چھوڑی۔ ہم پائل پوزیشن چلنے لگے۔ حالات ہی کچھ ایسے بن گئے تھے کہ ہمیں قدم قدم پر احتیاط کرنی تھی۔ بشیر ہمارا قابل اعتماد ساتھی بن چکا تھا اور اب اس قتل کیس کو پشت ڈال دینا ہمارے لیے ناممکن تھا۔ اس جذباتی لگاؤ کے علاوہ بشیر ایک ہماری اہم ضرورت بھی بن چکا تھا۔ اس کے توسط سے ہم نئی لڑکوں کو گروہ کو باقاعدہ تربیت کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے متعلق اپنی سینئرز کو بھی آگاہ کر چکے تھے۔ ہمیں یہ بھی خطرہ تھا کہ قاتل کو اگر میرے نذیر اور عارف کے بشیر کے ساتھ تعلقات کا پتہ ہے تو پھر وہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر سکتا ہے، اس لیے فوری طور پر اس کا سراغ لگانا اور اس کا ہمیشہ کے لیے منہ بند کرنا بہت ضروری تھا۔ بشیر کے گیراج سے ذرا پہلے 4 لڑکے ہمیں اپنی طرف آتی دکھائی دیے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں واپس لوٹ جانے کا کہا۔ ہمیں ان پر پورا اعتماد تھا، لہٰذا ہم واپس چل لیے۔ وہ 30 قدموں سے چلتے ہوئے ہم سے آ ملے اور سرگوشی میں کہا کہ گیراج میں اس وقت پولیس آئی ہوئی ہے۔ کچھ آگے چپل ہوٹل تھا، وہ لڑکے ہمیں ہوٹل کی پچھلی جانب لے گئے۔ وہاں چپل ہوٹل کی باورچی خانے کے ساتھ ایک کمرہ بنا ہوا تھا جہاں چند کرسیاں پڑی ہوئی تھی۔ لڑکوں نے بتایا کہ یہ چفیر ہوٹل بشیر نے ہی ایک مسلمان کو بنوا کر دیا تھا اور بشیر کے ساتھیوں کے لیے ایک محفوظ جگہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد چائے آگے آسمان بادلوں سے بھرا ہوا تھا اور کسی وقت بھی بارش ہو سکتی تھی۔ لڑکوں نے بتایا کہ پولیس نے عقیل میاں سے معمولی پوچھ گچھ کی ہے۔ پولیس کو تو یہ خوشی تھی علاقے کا نڈر مسلمان غنڈہ ہلاک ہو چکا ہے اور ان کا سردردی ختم ہو چکی تھی، اس لیے محض رسمی کارروائی کی جا رہی تھی۔ میں نے لڑکوں سے کہا کہ آج ہم فیصلہ کر کے نکلے ہیں کہ بشیر کے قاتل تک پہنچ کے رہیں گے۔ لڑکوں نے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ مجھے عقیل پر شک ہے۔ لڑکوں نے دبی زبان میں میری تائید کی، مگر دو نے کہا کہ 2 سال پرانے ملازم کو آخر بشیر کو قتل کرنے کی ضرورت پر کیوں پیش آئی، جبکہ بشیر اسے بہت زیادہ رقم تنخواہ اور انعام کے علاوہ دیتا تھا۔ میں نے لڑکوں کو کہا کہ وہ ہمارے ساتھ ہی ٹھہرے، آج ہی اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ عقیل بے گناہ ہے یا گناہ گار۔ لڑکوں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ میں نے 2 لڑکوں کو گیراج کی طرف بھیجا اور کہا کہ وہ کہیں چھپ کر پولیس کے جانے کا انتظار کرے۔ جو ہی پولیس چلی جائے ان میں سے ایک ہمیں اطلاع دینے کے لیے آ جائے اور دوسرا عقیل کے پاس جا کر اس باتوں میں ہمارے پونے تک لگائے رکھے۔ تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک لڑکا بھاگتا ہوا ہے اور کہا کہ پولیس جا چکی اور دوسرے ساتھی نے عقیل کے باتوں میں لگا لیا ہے، اس لیے جلدی چلے اس سے پہلے کہ عقیل گیراج کے دروازے بند کر کے کہیں چلا جائے۔ ہم سب تقریباً بھاگتے ہوئے گیراج تک پہنچے۔ گیراج کا بڑا دروازہ نیم بند تھا۔ ہم ایک ایک کر کے گیراج میں داخل ہوئے۔ سب سے آخر میں داخل ہونے والے میرے ساتھی نے گیراج کو اندر سے بند کر دیا۔ عقیل جو ہم 9 افراد کی آمد سے اچانک گھبرا گیا تھا اور دروازہ بند ہوتے بالکل بوکھلا گیا اور مدد کے لیے چیخنے ہی والا تھا کہ میرے جوڈو کراٹے کے ماہر ساتھی نے 2 وار کر کے اسے بے ہوش کر دیا۔ میں نے 2 لڑکوں کی ڈیوٹی مین گیٹ پر لگائی تاکہ اگر کوئی باہر سے آئے تو ہمیں بتا سکے۔ میرے 2 ساتھی اور 2 لڑکوں نے عقیل کو ہاتھ پاؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور گیراج کے اندر سے کمرے میں لے گئے جہاں بشیر دن کے وقت بیٹھا کرتا تھا۔ اس کمرے کے اندر سے رہائشی کمرہ چھوڑ کر بشیر کے رہائشی حصے کے 2 کمرے تھے اور ان کمروں کے علاوہ 2 بڑا کمرہ تھا جس میں لیتی مشین کے علاوہ کئی اور مشینیں پڑی ہوئی تھی۔ بشیر کے رہائشی حصے کے کمرے مقفل تھے۔ میرے نمبر 2 نے عقیل کی جیب سے چابیاں نکالی اور ہم سب بشیر کے بیڈ روم میں آ گئے اور عقیل کو بھی ساتھ گھسیٹ لائے۔ یہی اسی بیڈ پر بشیر کا قتل ہوا تھا۔ عقیل کے لیے ہمارا آنا غیر متوقع تھا، اس لیے اس کی حالت اتنی خیر ہو گئی تھی عقیل ہوش میں آنا شروع ہو گئی تھی اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا۔ میں ساتھیوں کی اشارہ کیا، انہوں نے پاؤں کی ٹوکروں سے عقیل کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع میں ایسی مارنا چاہتا تھا کہ وہ سچ بولنے پر مجبور ہو جائے۔
जब इसकी अच्छी तरह टिकाई हुई गई तो मैं इस कुर्सी पर बैठना का कहा। वो बड़ी मुश्किल से उठकर कुर्सी पर बैठा। मैंने उसे एक जापड़ रसीद किया, वो फिर नीचे गिर गया और मैंने कहा कि अब वो फर्श पर बैठ जाए। तो मैंने पूछा कि अब सच सच बताओ बशीर कैसे कत्ल हुआ। अकील ने वही सिक वाली कहानी शुरू कर दी। तो मेरे साथी ने इसके सर पर गोंद सा मारा। मैंने अकील को कहा कि मैंने तुम्हें सच बोलने का कहा था, सिक वाली बात बिल्कुल गलत है, इसलिए असल बात बताओ। अकील ने गड़गड़ा कर माफ़ी मांगनी शुरू करी और कहा कि सिक वाला वाक़या सच्चा है। मेरे साथियों ने फिर इसकी पिटाई शुरू कर दी। बाहर बारिश हो रही थी और ये कमरा गैराज के बिल्कुल आखिरी कोने में था, इसलिए इसकी चीख व पुकार की आवाज़ बाहर सड़क तक जाने का इम्कान बिल्कुल नहीं थे। मेरे एक साथी ने लोहे का एक रेंज उठाया और मुझसे पूछा कि हाथ से शुरू करो या पाँव से। मैंने कहा पाँव से। तो उन्होंने अकील को जूते उतारने का कहा। अकील ने जूते उतारने से तामुल किया तो मेरे साथियों ने उसे मजबूती से जकड़ लिया। इसके जूते उतार, इसके मुँह में रुमाल टूंसा और इसके पाँव पर रेंज मारना शुरू कर दिया। जब इसका एक पाँव की हड्डियाँ चकनाचूर हो गई तो फिर एक साथी ने अकील को दूसरा पाँव आगे कर दिया। मैंने साथियों को रोक कर अकील से कहा कि अब भी वक्त है, अपने दूसरे पाँव की हड्डी तोड़वाने से बचा सकते हो। अगर सच बता दो तो बच सकते हो। जो कि ग्रिप बहुत सख्त थी, इसलिए इसने सर को ज़ोर ज़ोर से हिलाना शुरू कर दिया। रेंज वाली साथी ने अकील को मुंह से रुमाल निकाला तो दर्द की वजह से अकील ने चीख मारी। मेरी साथी ने रेंज उठाकर इसके दूसरे पाँव का निशाना बनाना चाहा तो अकील बोला, अल्लाह का वास्ता मत मारो, मैं सब सच बताता हूँ। अकील ने जो कुछ बताया वो ये था कि बशीर के कत्ल से एक रोज़ पहले इसने बशीर को अपनी खुफिया सेब को देख लिया था। ये सेब ज़मीन में इसी कमरे में इस तरह गड़ी हुई थी कि इसका सामने का रुख ऊपर की जानिब और फर्श से करीब 6 इंच अंदर था। कमरे में बड़ी टाइलों का फर्श था। सेब बंद कर इसके ऊपर टाइल रख दी जाती थी और बड़ा कालीन इन टाइलों को डाम देता था। कमरे में एक और बड़ा कालीन बचा हुआ था और सेब वाली जगह पर सोफा सीट पड़ा रहता था। अकील ने बताया कि सेब में ढेर सारे रुपए देखकर इस नीयत ख़राब हो गई थी। बशीर इस पर इतना एतबार करता था कि बशीर ने अकील को एक पिस्तौल दे रखी थी। इस पिस्तौल से अगली रात सोते हुए बशीर को निशाना बनाया और फिर चाबियाँ निकाली और सेब खोलने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। यानी सेब न खुली क्योंकि सेब में नंबर लाग भी था। हमने सोफा हटा ली, कालीन उल्टा टाइल उठाए तो सेब सामने था। चाबियों की पूछने पर अकील ने बताया कि दूसरे कमरे में लेथ मशीन के नीचे रखी है। मेरा एक साथी वहाँ गया और चाबियाँ उठा लाया। चाबियाँ तो सेब में लग गई मगर नंबर लाख बड़ी प्रॉब्लम थी। सेब इतनी मोटी और मजबूत थी कि पिस्तौल से भी न खुल सकती थी। मुझे यकीन था कि नंबरों की तरतीब बशीर ने कहीं न कहीं लिख रखी होगी। मैंने बशीर के कागजात वाली अलमारी कंगालनी शुरू कर दी। इस अलमारी में मुख्तलिफ किस्म के कागजात और बिजली पानी के बिल है बेतरतीब से पड़े हुए थे। एक डायरी नमा कापी कागज़ों के नीचे से मिली। इस डायरी में नाम, फ़ोन नंबर और मुख्तलिफ किस्म के अजीब व गरीब एड्रेस लिखे हुए थे। मसलन मशरक़ में 140 किलोमीटर वाले 140 किलो वाले पहुँचाने हैं। 6 किलो जनूब में सामान की कीमत मिलेगी। इस डायरी पर इस तरह की तहरीरें दर्ज थी। मैंने नोट किया था कि इस डायरी के हर सफ़े पर बिस्मिल्लाह की अददी कोड 786 लिखा हुआ था। सिर्फ एक सफ़ा था जिस पर दाएं जानिब 8 और 6 लिखे हुए थे जबकि बाएं जानिब 7 लिखा हुआ था। मैं हैरान था कि इस सफ़े पर 786 को उलट पुलट क्यों लिखा हुआ है। मेरे साथी इस दौरान सेब के नंबर मिलाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उन्हें पीछे हटाया और लाख नंबर का 0 पर किया और दाएं जानिब घुमाकर 8 पर किया, फिर दूसरे को बाएं जानिब घुमाकर 7 पर किया और फिर पूरा चक्कर देकर 6 पर किया और अल्लाह का नाम लेकर हैंडल घुमाया तो सेब खुल गई। मैंने साथियों से कहा कि सेब को बिल्कुल खाली कर दे। सेब में 11 लाख और कुछ हज़ार रकम, पिस्तौल, बेशुमार गोली और डायरी बरामद हुई। डायरी में इस ग्रुप के तमाम लड़कों के नाम और पते और मुख्तलिफ फ़ोन नंबर लिखे हुए थे। मैंने वो डायरी अपनी जीप में रख ली। इस दौरान खूब बारिश शुरू हो गई। बड़े गेट पर खड़े लड़के भी अंदर आ गए। रुपया और सलाह मेरे साथियों ने बशीर को एक सूटकेस में रख लिए। अकील घंटों के बिल बेट आंखें पड़े हमें और सेब से निकली इतनी रकम को देखता रहा था। अब वही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम था। मैं हमेशा से आदत थी कि जब भी कोई मसला होता अपने वालिदैन और इनकी गैर मौजूदगी में दोस्तों से मशवरा ज़रूर कर लिया करता था, लेकिन बाज़ औक़ात कोई ऐसा काम होता तो पहले फैसला करके अमल करता फिर किसी को बताता। मैंने लड़कों को गाड़ी पर डालने वाले तरपाल लाने को कहा। चंद मिनट में ही उपटा पुराना तरपाल लेकर आ गए। मैंने उन्हें तरपाल को दोहरा करके बुझाने का कहा। जब तरपाल बुझा गया तो कहा कि अकील को तरपाल पर ला कर बिठा दो। उन्होंने अकील को उठाया और तरपाल पर ला बिठाया। इससे पहले कि मेरे साथी लड़के कोई सवाल करते मैंने पिस्तौल निकाला और पे दर पे 3 गोलियां अकील के सीने में दाग दी। अकील ने मुदहम सी सिसकी लिया और वही ढीर हो गया। अकील ने बशीर के कत्ल का इकबाली जुर्म किया था। अकील को जिंदा छोड़ने का मतलब अपने आप को, साथियों को और लड़कों को, नज़ीर और आइब को भारतीय पुलिस या DMI के हवाले करना था। इसलिए मैंने अकील को ख़त्म कर दिया। मैं इस वक्त गुस्से की हालत में था और मेरी ये हालत मेरे साथियों ने पहली मरतबा देखी थी, इसलिए वो बिल्कुल खामोश थे। लड़के मुझे लाला जी कहते थे। इनमें से एक फौलाद, लाला जी हम तो समझते थे कि आप इसको ज़िंदा छोड़ देंगे, मगर आपने इस गद्दार और
नमक हराम को बहुत मारकर बहुत अच्छा काम किया, इसका ये अंजाम होना चाहिए था। जब वो चुप हुआ तो एक लड़के ने कहा कि अगर इसकी गर्दन अलग करके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए और चेहरा भी इस तरह कर दिया जाए कि शनाख्त न हो सके तो बेहतर रहेगा। एक ने कहा कि लाश को गैराज में ही दफन कर दिया जाए, जैसे मैंने पूरी रद्द कर दिया। आखिर फैसला हुआ कि गर्दन अलग करके चेहरा नाकाबिल शनाख्त बना दिया जाए, बाकी जिस्म के 8 टुकड़ों को तरपाल के टुकड़ों में बांध कर दरिया बर्बाद किया जाए, अकील का ज़ाती सामान जला दिया जाए और कोई ऐसा निशान न छोड़ा जाए जिससे पता चल सके कि अकील को कत्ल किया गया है, बल्कि ये समझा जाए कि वो कहीं भाग गया है। लाश के टुकड़े ने लड़कों ने किए। मेरा एक साथी चाय बनाने के लिए चला गया। मैंने आरिफ का फ़ोन मिला। इस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। काफ़ी देर घंटी बजने के बाद आरिफ ने फ़ोन उठाया। मैंने मुख्तसर कहा कि चतलाल मियाँ में हम 9 आदमी मौजूद है, एक बहुत इमरजेंसी है, लिहाजा एक आदत गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए पहुँच जाए। इससे पहले क्यों मजीद सवाल करता। मैंने कॉल काट दिया। आधे घंटे में लड़कों के लाश टुकड़े कर दिए। लाश को 9 गट्टरों में बांध दिया गया। इतनी देर में मेरा साथी चाय और बिस्किट लेकर आया। हम सब ने मिलकर चाय पी। क़रीन, यहाँ एक बात मैं अर्ज़ करता हूँ कि जब से मैं भारत में आया था तब से लेकर आज तक ये मेरा पहला कत्ल था जो मैं भारत में किया। हो सकता है कि मैंने कत्ल न करता, मगर इस अक़िल ने हमारे एक बहुत काबिल नडर जानबाज और हुनरमंद जो हमारे आगे चलकर बहुत काम आ सकता था को कत्ल किया। इसलिए वो अपने दिफा के लिए मुझे अक़िल को कत्ल करना पड़ा था। 4 बजने से पहले ही हमें हॉर्न के वक्फे से बुझने की आवाज़ सुनाई दी। आरिफ एक पड़ोसी की गाड़ी लेकर आ चुका था। मैंने आरिफ को मुख्तसर सारी बात बताई। लड़कों ने गुड़ियों को गाड़ी की डिग्गी में रख दिया। एक अक्लमंदी उन्होंने ये की कि गैराज में मौजूद ईंटें भी हर गुटली 5+5 ईंटें भी रख दी ताकि गुटियाँ वज़न की वजह से पानी के तह में चली जाए। हर गुंटी के मुंह को रस्सी से मजबूत से बांध दिया गया था। आरिफ ने बताया कि दरिया जमुना के एक किनारे पर सड़क डाउन स्ट्रीम में 10-12 मील तक दरिया के साथ जाती है और लाश को वहाँ फेंकना बेहतर रहेगा। मैंने सुबह 4 बजे का वक्त इसलिए चुना था कि इस वक्त नाइट ड्यूटी वाले पुलिस घरों को चले जाते हैं, जबकि सुबह वाले 6 बजे से पहले अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचते। इसलिए वक्त सिर्फ नवाही दूध वाले ही सड़कों पर नजर आते हैं। गाड़ी में आरिफ के साथ एक मेरा साथी और 3 लड़के बैठ गए ताकि गुट्टू को ठिकाने लगाने में ज़्यादा वक्त न लगे। मैंने आरिफ को कहा कि लाश ठिकाने लगाने के बाद गाड़ी की डिग्गी थोड़ी देर के लिए खुली रखना ताकि बारिश से डिग्गी अच्छी तरह साफ हो जाए और खून के निशान न रहे। वो लोग लाश लेकर चले गए तो पीछे मेरे 3 साथी और एक लड़का गैराज में खड़े रह गए। आरिफ ने जाते वक्त कहा था कि लाश ठिकाने लगाने के बाद वो 3 लड़कों को चतलाल मियाँ के करीब कहीं उतर देगा और मेरे साथी को लेकर घर पहुंच जाएगा। मेरे साथ ही रह जाने वाले लड़के ने कहा कि दिल्ली में चलने वाली ज़्यादा टैक्सियाँ चतलाल मियाँ के रहने वाले की है जो सुबह 7 बजे रोज़ी कमाने निकल पड़ते हैं। ठीक 5 बजे हमने गैराज की कमरों और मेन गेट को ताला लगे और सूटकेस और किनूस में पिस्तौल और गोली से भरे थैलों को लेकर सड़क पर आ गए। अभी बिल्कुल अंधेरा था। बादलों ने शहर की हल्की सी रोशनी को भी चंबा रखा था और मूसलाधार बारिश हो रही थी। हम बारिश में भीगते पैदल चलते हुए 2 किलोमीटर दूर चुरवाहे पर पहुंच गए और दाएं जानिब की सड़क के किनारे एक दरख्त के नीचे खड़े हो गए ताकि कोई हमें चतलाल मियाँ से आता हुआ न समझे। थोड़ी देर बाद एक ट्रक दिल्ली की जानिब जाता हुआ दिखाई दिया। हमने उसे रोका तो सिख ड्राइवर ने कहा कि उसे मंडी जाना है, 10 रुपये दो और पीछे बैठ जाओ। हमने उसे गनीमत जाना और तरपाल से ढके हुए नए ट्रक के पीछे तरपाल के नीचे बैठ गए। सब्जी मंडी पहुंचकर हमने रेलवे स्टेशन का और ओवरहेड ब्रिज क्रॉस किया और दूसरी जानिब आ गए। स्टेशन से बाहर रिक्शा और टैक्सियाँ खड़ी थी। हमने 2 टैक्सियाँ ली। एक टैक्सी में इस लड़के को 200 रुपये देकर इसे घर भेजा और दूसरी टैक्सी में हम चारों साथी बैठकर घर की तरफ रवाना हुए। हम रात भर गए जागे और बारिश से बुरी तरह भीगे हुए थे। साथियों में नाश्ता बनाने की हिम्मत नहीं थी, लिहाजा हमने नज़ीर के घर वालों को नाश्ते का कवर नज़ीर को ऊपर बुलाकर रात वाली सारी सूरत हाल से आगाह किया। इसने भी मेरे फैसले की तायद की। 8 बजे तक आरिफ और मेरा साथी भी वापस लौटे और अपना काम बखैर व खूबी अंजाम देने का बताया तो हम सब मुतमईन हो गए। बशीर से ताल्लुक़ मुख्तसर वाक़यात अर्ज़ करता चलूँ। 2 रोज़ बाद आरिफ ने बशीर के साथ काम करने वाले लड़कों को मीटिंग बुलाई क्योंकि आरिफ को ही सरपरस्ती हासिल थी। मैंने तमाम रुपया नज़ीर और आरिफ के हवाले कर दिया, जैसे दोनों जॉइंट अकाउंट खोलकर बैंक में रख दिया। इस रुपये से लड़कों की तरबियत और इनकी ज़रूरियात पूरी करनी थी। बशीर का कोई नज़दीकी रिश्तेदार तो था नहीं, लिहाजा हमने यही बेहतर समझा कि इस रुपये को बशीर के जानिसार लड़कों पर ही सर्फ की जाए। बशीर की सही कदर तो इसके मरने के बाद हुई। इसने अपनी वसीयत लिखी हुई थी कि इसके मरने के बाद इस गैराज को बेचकर इससे हासिल होने वाली रकम को चतलाल मियाँ की कुंवारी लड़कों की शादी में सर्फ किया जाए। मेरे मशवरे से आरिफ ने वो गैराज बशीर के पैसों में से निकालकर 3 लाख में ख़रीद ली। बशीर के जानिसार को फिर मिलकर बैठने और अपनी मुस्तकबिल की कार्रवाई करने के लिए जगह मुयस्सर आ गई। जिन लड़कों को बशीर ने मोटर मैकेनिक का काम दिखाया था उन्होंने वर्कशॉप संभाली। चतलाल मियाँ वालों को जब बशीर की वसीयत और गोंडे के खोल में एक शरीफ और मोहब्बत करने वाला इंसान दिखाई दिया तो बहुत प्राइवेट कारें और टैक्सियाँ इस गैराज के मुस्तकबिल गग बन गई। मैकेनिक लड़कों ने भी खूब मेहनत की। गैराज का काम और शोहरत रोज़ बरोज़ बढ़ती गई। दिन को वहाँ गाड़ियों की मुरम्मत का काम होता था और रात को तरबियत और मुस्तकबिल में कार्रवाई की मनसूबाबंदी की जाती थी।
एक बात और, बशीर के सेब से मिलने वाले असलहा मैंने अपने साथियों के हवाले कर दिया था, वो इसलिए कि अगर लड़कों को हवाले किया जाता तो अशआल में अगर कोई ऐसी कार्रवाई या काम कर गुजरते जिससे हम सब मुसीबत में बन सकते थे। रामपुरी चाकू का इस्तेमाल तो वो बशीर से पहले ही सीख चुके थे और बारूदी असलहा उन्हें देना अक्लमंदी न थी। मेरे साथी और मैं पहले ही आसाब शिकन माहौल में रह रहे थे। बशीर के कत्ल ने तो बिल्कुल हमें हिला कर रख दिया था। बशीर के कत्ल के 2 हफ्ते बाद मैंने अपने साथी को पहले से तयशुदा मनसूबे के मुताबिक छुट्टी गुजारने का कह दिया, लेकिन उन्हें इनकार कर दिया। मैंने मासिवाई डाक के वसूल करने और भेजने की बाकी सारी कार्रवाइयाँ मुअत्तल करने का कहा तो इस पर मान गए। मैं खुद भी ज़हनी तौर पर बहुत थक चुका था, जिसका इजहार मैंने कभी नहीं किया। मैं तकरीबन रोज़ाना ही साथियों के घर चला जाता, नज़ीर और आरिफ से मिलता, गपशप लगाते। मैंने एक बात नोट की कि मेरे साथी ज़्यादातर बिस्तर में ही दबके रहते थे और ख़ुद मैं भी 2-4 घंटों के अलावा बाकी सारा टाइम कमरे में ही बिस्तर पर ही गुजार देता। मैंने इस बात को महसूस किया और सोचा कि इस तरह तो आसाबी तनाव हम सब पर सवार हो जाएगा। जब 65 की जंग में बॉर्डर पर मौजूद पाकिस्तानी फौजी आधी रात को मिलकर अल्लाह अकबर का नारा लगाते तो हिंदू बाकी सारी रात फायर करने में गुजार देते और हमारी फौजी आराम से मोर्चों में बैठे रहते। भारतीय फौज अली सुबह हजत से फरागत के लिए चमकती गुड़ियाँ लिए हुए मोर्चों से बाहर निकलते तो पाकिस्तानी जवान गुड़ियों का निशाना लेकर 2-4 फायर कर देते और फिर इनकी न हजात बाकी रहते और न गड़ुया भारतीय फौजी की कई घंटे फायर करने में गुजार देते। पाकिस्तानी फौजी ने तो उसे रोज़मर्रा का खेल बना लिया था। इधर भारतीय फौजियों की हालत दगुरगू थी। आखिरकार भारतीय सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर ने पाकिस्तानी सेक्टर कमांडर से गड़गड़ा कर इल्तिजा की कि एक तो पाकिस्तानी फौजी आधी रात को अल्लाह अकबर का नारा न लगाए और दूसरा गुड़ियों का निशाना बनाना छोड़ दे। कई भारतीय फौजी अल्लाह अकबर के नारे से अपने हवास खो बैठे और चीखते चिल्लाते फायर करते नो-मेयर लैंड को क्रॉस करके आगे निकल जाते और पाकिस्तानी फौजी का निशाना बनकर मर जाते हैं। लहू गर्म रखने के लिए हमें झपट कर पलटने की ज़रूरत थी। मैंने हंगामी तौर पर एक इजलास बुलाया और आरिफ के ज़रिए शाम 6 बजे गैराज में मीटिंग का कह दिया। अगले रोज़ हम पांचों आरिफ को लेकर गैराज में पहुंचे तो तमाम लड़के वहाँ मौजूद थे। मैंने उन्हें कहा कि अब हमें हाथ पर हाथ धरे तो बैठने नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने काम को तंदही से ही आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए यही काफ़ी था। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले किस्से के साथ। तब तक अपने दोस्त असद को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।